Welcome to my YouTube channel Samarth ESP. Today we are discussing Church Going Poem by Philip Larkin. First, let's see here introduction of the poem. Church Going is a masterpiece of 20th century poetry by Philip Larkin, published in the volume entitled The Less Deceived in 1955. It consists of 63 lines divided into 7 stanzas of 9 lines each using the rhyme scheme ABAB CD ECE. This poem particularly reflects on religion, secularism, and the cultural role of churches in modern society. Larkin's contemplative voice moves from casual observation to profound philosophical inquiry, exploring the enduring significance of sacred spaces. Now, the summary of the poem. One day, the poet enters an empty church, observing its silence, inscriptions, musical instruments, altar, and clean roof. He reflects upon the church's fading significance and imagines future visitors misunderstanding its original purpose. The poem ends with a profound statement: the church is a serious house on serious earth, a place where human longings, destiny, and truth have always met. This is based on the on changing time of the modernity, advanced days of the people, where the beliefs and disbeliefs and the superstitions all are faded away. So if there's no belief, there's nothing to stay upon. So poet is discussing that one day we are seeing or facing these sort of difficulties in our life, but one day people will understand that it is a serious place on somewhere in a serious ground. So critical themes and inner conflicts. So what are the central themes? We are dividing it into three different categories. So theme one, the transient nature of religious faith and church attendance, belief and practice fading in the modern secular age. Second, tension between reverence for tradition and contemporary secularism. The poet is drawn to the church yet questions its relevance. Third, the lasting spiritual significance of churches as places where human destiny, truth, and inner conflicts between emptiness and meanings are contemplated. Now, the structures and literary features of the poem. So here the form and imagery is very clear, crystal and conspicuous. बहुत साफ है, स्पष्ट है. इसमें 7 स्टैंजास हैं और प्रत्येक स्टैंजा में 9 लाइन्स हैं और ये एक प्रॉपर डिसिप्लिन देती है स्ट्रक्चर को, एक प्रॉपर सेट पैटर्न देती है जिसमें राइम स्कीम आपकी है उन 9 लाइन्स की ABAB CD ECE. ये क्रिएट करती है एक सटल गूढ़ अवस्था की कंसिस्टेंट म्यूजिकल पैटर्न. वी हैव द विविड इमेजरी, विभिन्न प्रकार की इसमें इमेजरीज है एंड लिवन है, विविड सजीव है थ्रू आउट द साइलेंस ऑफ द चर्च. इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख ऑन द स्टोन वहां पे है, द रूफ, द आल्टर जहां पूजा होती है, वेदी जिसे हम कहते हैं हिंदी में, एंड सीक्रेट ऑब्जेक्ट्स इवोक अ पावरफुल सेंस ऑफ प्लेस एंड मेमोरी. सो दीज ऑल थिंग्स, इंस्क्रिप्शंस जैसे होते हैं बड़े बड़ी जगह पे जो आपके मंदिर होते हैं, मठ होते हैं स्टोन्स में, उनका रूप होता है विशेष प्रकार का होता है, उनकी पूजा करने की जगह होती है जो बहुत ही आपको देख के लगता है कि कुछ समथिंग वो प्लेस है जहाँ पे आपको देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट देखते हैं. और जो सीक्रेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं आसपास रखे होते हैं उससे रिलेटेड वस्तुएं सामान, वो आपको पावरफुल एक इवोक करती है, अंदर से प्रेरणा देती है, सेंस ऑफ पीस उस प्लेस में जो आपकी मेमोरी के साथ साथ वो चिपक जाती है हमेशा के लिए. अब इसकी टोन और वॉइस पे बात कर लेते हैं. टोन इसकी शिफ्ट होती है ग्रेजुअली फ्रॉम कैजुअल डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन टू डीप फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस. ये पहले तो डिटैच कर रहा है पूरी तरीके से, अपने आप को अलग करता है, उसके बाद फिर फिलोसॉफिकल तरीके से इसको रिलेट करता है कि किसी को अगर सत्य को ढूंढना है या किसी के अंदर कुछ इस तरीके से सीरियसनेस है तो वो कहाँ जाएगा, मंदिर में ही जाएगा वो, और वहां पे जाके अपने आप को रिलेट कर पाएगा तो उस पावर के तहत वो अपने आप को ही विल मेक हिमसेल्फ लिटिल बिट कनेक्टेड टू दैट प्लेस वेयर द पीपल ऑफ टुडे और द मॉडर्न वर्ल्ड. एज यूरोप में अगर आप देखेंगे जाके तो वहाँ पे एथीस्ट ज्यादा हो गए आज की डेट में, जितना परसेंटेज है टोटल रिलीजन का उनसे ज्यादा एथीस्ट का परसेंटेज है, जिनको हम कहते हैं नास्तिक लोग.
So the narrative wise evolves from that of an indifferent visitor to a thoughtful seeker of meaning. So जो अस्वाभाविक विजिटर है वहां पे उससे एक thoughtful meaning यहाँ पे इवॉल्व करने की कोशिश करते हैं. Employs metaphor and symbolism to explore human existence, spiritual longing, and the enduring significance of sacred spaces. Introduction, summary, इसकी सेंट्रल थीम्स हमने समझ ली है और स्ट्रक्चर और लिटरेरी फीचर्स को हमने देख लिया है. अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक एक स्टैंजा लेते हैं और उस स्टैंजा का हल्का सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं. तो फर्स्ट स्टैंजा चर्च गोइंग का है. हम इससे थोड़ा पढ़ेंगे अगर स्टैंजा को तो हमें बहुत चीज क्लियर हो जाएगी इसमें हो क्या रहा है, कैसे ऑथर वहां पे जो पोएट वहां पे जाता है और वो किस प्रकार से क्या क्या चीजें चर्च में देखता है. इस समय वो कंप्लीटली अबेंडेंड है और वो एब्सोल्यूट लग रहा है आज की डेट में, बट वो उसकी मीनिंग भी ढूंढता है और वो उसको लगता है कि क्या ये कभी खंडर बन जाएंगे और इनकी कहानियां रहेंगी या ये किसी काम के रह जाएंगे. सो लेट सी द फर्स्ट स्टैंजा. Once I am sure there is nothing going on. I step inside, letting the door thud shut. Another church, matting, seats and stone. वो यही बता रहा है कि जब वो चर्च के अंदर जब वहां पहुंचता है तो वो श्योर है कि कुछ नहीं चल रहा वहां पे. वो अंदर स्टेप लेता है और पीछे दरवाजा थर्ड से बंद होता है. जैसे और चर्च होते हैं वैसे ही मैटिंग है, सीट्स है, स्टोन है एंड लिटिल बुक्स जैसे होती हैं, ग्रंथ वगैरह होती हैं, धार्मिक पुस्तकें होती हैं. स्प्रॉलिंग्स ऑफ फ्लावर्स कट फॉर संडे, ब्राउनिश नाउ, सम ब्रेस एंड स्टफ. और वहां पे फैले हुए हैं फ्लावर्स और दे आर ऑल समथिंग ऑफ द प्रीवियस डे फॉर संडे ब्राउनिश नाउ. और वो ब्राउनिश हो गए हैं, पूरी तरीके से मुरझा गए हैं. सम ब्रेस एंड स्टफ जो सामान होता है वहां का, दैट इज ऑल दैट. अप एट द होली एंड द स्मॉल नीट ऑर्गन. और जो ऑर्गन बजाए जाते हैं कभी वहां पे पूजा स्तुति होती होगी तो आपने देखा मंदिरों में भी ऐसा होता है. तो दैट ऑर्गन ही इज डिस्कसिंग हियर. एंड अ tense musty unignorable silence. Brewed God knows how long. Hateless I take off. ये सब कुछ सोचता है, भगवान इसके बारे में जानता है. मस्ती वहां पे बहुत धूल है, टेंस है माहौल, अनइग्नोरेबल साइलेंस है पूरी तरीके से. और ब्यूट आप समझते हैं कि बियर बनाने की प्रोसेस को भी कहते हैं बनाना, निर्माण करना. तो गॉड नोज हाउ लॉन्ग, कब तक चलेगा ये. और वो अपना वो सिर से हेड निकाल देता है, टेक ऑफ करता है. और माई साइकिल क्लिप्स इन ऑकवर्ड रेफरेंस. और साइकिल क्लिप्स क्या होती है, जब साइकिल चलाते हैं तो वो चैन में ना फंस जाए पैंट तो वो नीचे लगाते हैं. सो इट्स वेरी टीनियस सॉर्ट ऑफ थिंग्स ही इज डिस्कसिंग देयर. तो इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं फर्स्ट स्टैंजा का क्या है. द पोएट एंटर एन एम्प्टी चर्च, फर्स्ट मेकिंग श्योर no service is in progress. He steps inside cautiously, letting the door shut behind him with a third, signaling his solitary unofficial visit. So he catalogs the church's content. Catalog मतलब जिसमें निश्चित प्रकार की इंडेक्स होता है, उसमें हमें समझ में आता है कि क्या 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 चीजें यहाँ पे. जैसे कैटलॉग आप समझ लीजिए कि किसी मेन्यू को भी कह सकते हैं. So that is all. He is डिडक्टिंग द थिंग्स व्हाट इज देयर एंड व्हाट इज नॉट. सो मैटिंग है, सीट्स है, स्टोन है, लिटिल बुक्स है, हिमनल्स, प्रेयर्स बुक्स और विल्टेड फ्लावर्स लेफ्ट ओवर द संडे, ब्रेस्ट ऑर्नामेंट्स near the altar and a small neat organ. The inventory is almost mundane. Another church implying he has visited many. और उसको लगता है कि जहां वो गया था सब ऐसी चीजें होती हैं तो he has visited many. The same. और यहाँ पे मोस्ट स्ट्राइकिंग है साइलेंस, टेंस, मस्टी, अनइग्नोरेबल, ब्रूड ओवर एन अननोनेबल स्ट्रेच ऑफ टाइम. और वो इस तरीके से टाइम हो रहा है स्ट्रेच वहां पर अननोनेबल है जिसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां कोई बताने वाला नहीं है. नो वन इज देयर टू आंसर यू बिकॉज नो फिजिकल आइडेंटिटी यू कैन फाइंड बिफोर टू क्वेश्चन टू आंसर फॉर योर आंसर. सो दिस साइलेंस कैरीज अ स्पिरिचुअल वेट द पोएट कैन नॉट डिसमिस. Even as he remains emotionally detached, his reverence is awkward and self-conscious. He removes his cycle clips, a practical cyclist gesture, yet frames it as an act of reverence. This irony captures his ambivalence. He neither fully believes nor entirely dismisses the sanctity of the space. वो पूरी तरीके से ना उसको डिनाई कर रहा है ना उसको पूरी तरीके से मान रहा है, ठीक है,
और वो सैंक्टिटी जो उसकी पवित्रता है उस प्लेस की, उसका पूरा सम्मान कर रहा है। इसी सम्मान के कारण वो अपनी कैप को भी निकाल देता है और वो जो साइक्लिस्ट जेस्चर है उसका क्लिप्स वगैरह लगी हुई थी उसको भी सब वो हटा देता है वहां से, और वो पूरी तरीके से वहां अपने आप को उस प्लेस के हिसाब से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। इसका सेकंड स्टैंजा देखते हैं। मूव फॉरवर्ड, रन माई हैंड अराउंड द फॉन्ट, फ्रॉम वेयर आई स्टैंड द रूफ लुक्स ऑलमोस्ट न्यू, क्लीन्ड एंड रेस्टोर्ड। ऐसा लग रहा है रिपेयर हुआ है। जब वो जाता है वहां पे तो मूव करता है हैंड को अराउंड दी फॉन्ट। फॉन्ट क्या होता है? लिखावट होती है, जैसे न्यू टाइम्स रोमन, कैलिबर। तो जो लेख है शिला वहां पे कुछ लिखा हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड दी फॉन्ट। और वो जो रूफ है उसको वो महसूस कर रहा है कि क्लीन्ड है, रेस्टोर्ड है, रिपेयर्ड है पूरी तरीके से। समवन वुड नो, समवन मतलब कोई इसको जानता होगा, बट आई डोंट नो, क्योंकि आंसर के लिए कोई है नहीं वहां पे। हु विल आंसर दिस ऑल, बट समवन वुड नो अबाउट दैट व्हाट इज देयर। माउंटिंग द लेक्टर्न, लेक्टर्न क्या होता है? एक प्रकार का डेस्क होता है जिसमें हम लोग वहां पे रख के कुछ पढ़ते हैं, धार्मिक पुस्तकें वगैरह। आई पेरूज अ फ्यू हेक्टरिंग लार्ज स्केल वर्सेस। और वो वहां पे ये कह रहे हैं कि वो इस तरीके से जो लिखी हुई है वहां, लाइनें लिखी हुई हैं फॉन्ट के रूप में, उसको ये पढ़ने की कोशिश करता है। और कैसी पढ़ने की कोशिश करता है? बड़े तेज तर्रार तरीके से। उसका इको होता है क्योंकि वहां पे कोई भी नहीं होता। एंड प्रोनाउंसेस, और प्रोनाउंस कर रहा है जोर जोर से। हियर एंड इट मच मोर लाउडली देन आई वुड मेंट। और जितना उनको लगता है कि आवाज उसकी होगी उससे ज्यादा होती है कि सम इको इज देयर, द इकोस स्निकर ब्रीफली, वो फैल रहा है इको के रूप में। बैक एट द डोर, और जो बैक है, बैक की तरफ आते हैं डोर में, एक बुक वहां रखी होती है। आई साइन दी बुक, आपने देखा बहुत विदेशों में कहीं जाते हैं तो बुक्स वगैरह होती है इस तरीके से, रिमार्क करते हैं बड़े बड़े नेता। तो ऐसी बुक होती है चर्च में जिसमें लोग आते हैं, साइन करते हैं, कुछ डोनेट देते हैं, डोनेशन देते हैं। सो ये भी वही करते हैं। आई साइन द बुक, डोनेट एंड इरिस 6 pence, और रिफ्लेक्ट द प्लेस वॉज नॉट वर्थ स्टॉपिंग फॉर। और उसके बाद उनको लगता है कि ये प्लेस स्टॉप रुकने के लिए नाकाफी है, ये रिफ्लेक्शन को आता है। और दैट इज द सेकंड स्टैंजा। इसके हम एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, नॉर्मली रीड कर लेते हैं तो पता चल जाएगा क्या लाइन कैसे कनेक्ट हो रही है। The poet physically explores the church interior, running his hand around the font. Font वही जो लिखा हुआ शिलालेख के रूप में। The holy water basin, suggesting curious tactile engagement rather than reverence. अंदर से नहीं, लेकिन एक उनका engagement है। He observes the roof, noting it looks almost new, but cannot tell if it was cleaned or restored, highlighting his detachment from the church's history. Mounting the lectern, he reads aloud the large, formal, scriptural verses, unintentionally pronouncing here endeth for more loudly than intended. So the voice is something more louder than what he is expecting of his reading. The echoes that follow are described as sniggering, a playful, almost mocking effect in the empty space. Something you can make a laugh over that. That's sort of, mocking effect in that empty space. Underscoring the absence of a congregation. Congregation, nothing is, no gathering is there. So before leaving, he signs the visitor's book and donates an pence, Irish sixpence, a coin of little value, a gesture that is outwardly conventional yet inwardly hollow. He reflects that the place was not worth stopping for, revealing a lack of emotional or spiritual connection. So he's not, firmly connecting himself. A little bit loose grip is there of his connection. So even as his action mimic those of a genuine visitor. So इसका second stanza को हम देखें तो इसमें जो इसका main निकल के आता है, the echoes snigger briefly, ritual without congregation becomes absurd and hollow. First में था a tense musty unignorable silence brewed God knows how long. So this is the second stanza. Now see the third stanza. Yet stop I did, in fact I often do. Jesse always he does that, and always end much at a loss like this. Wondering what to look for, wandering to, wandering for
what to look for wandering to. When churches fall completely out of use, that the story now begin. कि जब पूरी तरीके से ये completely fall हो जाएंगे, what we shall turn into them, हम क्या करेंगे इसमें टर्न होंगे. If we shall keep a few cathedrals chronically on show, their parchment, plate, and fix in locked cases, and let the rest rent free to rain and sheep, shall we avoid them as unlucky places. अब वो ये कह रहे हैं कि जब पूरी तरीके से इनका मतलब खत्म हो जाएगा तो क्या करना चाहिए इनको क्रोनिकली, या तो इनको शो में दिखाया जाएगा, उनका जो पर्चमेंट है, जो भी उनके अंदर की चीज़ें हैं उसको लॉक कर दिया जाए किसी केस के अंदर में, और जो खाली जगह है तो इसको रेंट फ्री कर दिया जाए. किन के लिए? कोई जो रेन में आते जाते हैं, बारिश में भीगने वाले लोगों के लिए, या जो भेड़ बकरियां यहाँ वहाँ इस तरीके से बरसात में परेशान हो रही होती हैं, उनके लिए दे दिया जाए, या इसको पूरी तरह अवॉइड कर दिया जाए अनलकी प्लेसेस के रूप में. लेट्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द थर्ड स्टैंजा. The poet admits he visits churches regularly, yet always leaves confused and as a loss. He questions what he is truly seeking, spiritual peace, meaning, or something else, but finds no clear answer. He contemplates a future when churches fall completely out of use. He imagines a few grand cathedrals preserved as museum. So कुछ शो के लिए बच जाएंगे, इसको म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट कर देंगे. The sacred artifacts, parchment, plates and fix locked away in display cases for curious visitors. और उन लोगों के लिए जो क्यूरियस विजिटर्स होते हैं उनके लिए इस तरीके से इसको हम डेवलप कर देंगे कि डिस्प्ले के रूप में उनको हम दिखा सकें कि ये कुछ ऐसी चीज हुआ करती थी जिसका वो आनंद ले सकते हैं. सो दैट इज ड्राई स्कॉच, नथिंग इज देयर विच make you soothe. So the remaining churches he envisions will be abandoned and left to decay, freely sheltering rain and sheep. तो आश्रय देने के लिए रेन से जो प्रभावित हो उन लोगों को, और जो शीप वगैरह होती हैं. He then ponders whether such forsaken place will come to be regarded as unlucky or cursed. ये भी हो सकता है कि ऐसी छोड़ी गई जगह को कोई अनलकी कह दे या श्रापित कह दे, avoided altogether by a future society and has lost its connection to faith. faith का connection भी पूरी तरीके से lost हो जाए, तो जो सोसाइटी हो आने वाली वो उसको पूरी तरीके से अवॉइड कर दे, क्योंकि चेंजेस आर गोइंग ऑन एंड वन कैन नॉट assure that what did we the another generation or the time will feel about these sort of religious places. Now, fourth stanza. Or after dark will dubious women come to make their children touch a particular stone. जो संदेहात्मक बात है ये कि कोई लेके आएगी वो मैंने अपने बच्चे को और कहेगी टच कर लो, इससे कुछ फायदा हो जाएगा, यू विल हैव योर लकी चार्म. पिक सिंपल्स फॉर ए कैंसर, और कुछ दवा ववा का काम हो जाए वहां से. और ऑन सम एडवाइज्ड नाइट सी वॉकिंग ए डेड वन, और कोई ये एडवाइस करेगा कि वहां पे कोई रात में ऐसा डेड वन घूमता रहता है जिसको हम भूत वगैरह कहते हैं. पावर ऑफ सम सॉर्ट और अदर विल गो ऑन इन गेम्स इन रिडल सीमिंगली एट रैंडम. तो जो पावर है, इसकी जो महत्वता है, इसकी जो शक्ति है, वो कहीं गेम्स के रूप में या रिडल्स पहेलियों के रूप में ये यदृक्ष ही सीमिंगली कहीं सुनने को मिलेंगी कि ऐसा भी हो सकता है इसका. अदर विल गो ऑन बट सुपरस्टिशंस लाइक बिलीव मस्ट डाई. जैसे बिलीफ है आपका वैसे सुपर पाखंड जो वो तो खत्म होना ही चाहिए. एंड व्हाट रिमेन्स व्हेन दिस बिलीफ हैज गॉन, जब आपका डिसबिलीफ भी चला गया, अविश्वास भी चला गया, तो फिर बचता क्या उसके बाद? तो ग्रास है वहां पे, बीडी पेवमेंट है, बैम्बल्स है, झाड़ियां हैं, बटरेस स्काई है. सो दिस इज ऑल द थिंग्स व्हिच इज द सिंबोलिज्म ऑफ द प्लेस दैट्स ओनली वी फाइंड बाय वन देयर. सो the explanation of this stanza fourth. Larkin imagines future visitors drawn not by faith but by superstitions. तो फेथ के द्वारा तो ड्रॉन नहीं होंगे, कोई सुपरस्टिशन होगा कि ऐसी कोई चीज हुआ करती थी और जिससे कुछ लाभ होता था लोगों को. और आपको तो पहले ही पता है कि जो चर्चेस होते थे वो अपने आप में कॉन्वेंट भी होते थे, और वहाँ पे रिलीजियस बहुत सारी ऐसी चीजें चलती थी, गतिविधियां, जिसमें लोग कहीं ना कहीं
लगता था कि उनको उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो दर्द है, व्यथा है या जीवन से संबंधित समस्याएँ हैं, उनका निदान वहाँ पे मिल सकता है। तो ऐसी चीज़ों को लेकर यहाँ पर वही कह रहे हैं। सो dubious women bringing children to touch a particular stone for luck that I discussed. Gathering herbs, कुछ हर्ब्स वहाँ पे मिल जाएँगे रेमेडीज़ के लिए लाइक द डिज़ीज़ और gathering at night hoping to witness a ghost. That is all there. So this folk customs suggest that some mysterious power or ritual will persist in these spaces. So that's all. Connecting the what sort of power, mysterious power, or the magical things was there that has persisted there. तो ये सब कहानियों में हो जाएगी. Yet the poet foresees that superstitions like belief must also eventually die out. तो जैसे बिलीफ है, अगर बिलीफ चला गया तो सुपरस्टिशन भी चली जाएगा वहां का, उससे रिलेटेड चीजें जो है. So the closing image is stark. Once disbelief itself has gone, only natural decay remains. So जैसे ही वो जाएगा आपका, जिसको हम डिसबिलीव कहते हैं, बिलीव कहते हैं, तो उसके बाद बचेगा क्या? सो ग्रास है, वीडी पेवमेंट है, वहां पे झाड़ियां कटीली होंगी, ब्रैम्बल्स होंगी. बटरेस का मतलब इस जिस पे वो टिका होता है पूरा पूरा, जो होते हैं ना, बनाए जाते हैं ईंट के, जिसमें छत टिकी होती है, दीवारों के सपोर्ट के लिए होती चीजें, दैट इज कॉल्ड दी बटर. एंड ओपन स्काई इन द सेंस कि कुछ टिका हुआ है तो उसके नीचे जिस तरीके का सपोर्ट बनाते हैं उसको कहते हैं बटर. द चर्च dissolves back into landscape stripped of all human meaning. और जो it's all dissolved back into landscape stripped of all human meaning. So there's no human meaning remains there at all. Now stanza fifth. A shapeless, recognizable each week, a purpose more obscure. I wonder who will be the last, the very last to see. So ये कोशिश कर रहा है समझने की कि ये बहुत अस्पष्ट स्थिति में यहाँ पे कौन आएगा जो सबसे लास्ट होगा. दिस प्लेस फॉर व्हाट इट वाज वन फॉर द क्रू. ये जगह असली रूप में उस दल का क्या होगा जो यहाँ पे देखने आएगा. सम द टेप एंड जॉट एंड नो व्हाट रूट लॉब्स वर. तो छत्र होता है ऊपर का, उसको कहते हैं रूट लॉब्स. सम रूइन बीबर जो एडिक्टेड होगा खंडर देखने का, या रेंडी फॉर एंटिक. रेंडी फॉर एंटिक मीन्स यहाँ पर जैसे आप ये समझ लीजिए कि प्राचीन वस्तुओं को कोई बहुत वैसा होता है, पसंद करता है, वहां पे जाना चाहता है. और क्रिसमस एडिक्ट, ये क्रिसमस का कोई शौकीन ऐसा होगा जो यहाँ की काउंटिंग ऑन अ वीव. वीव एक प्रकार की खुशबू होती है इसमें जो बनी रहती है वहां पर, नॉट लास्टिंग बट इट इज समथिंग लाइक. यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड यूज कर रखा है of grow of gown and bands and organ pipes and myrrh. लोभान कहते हैं मर को. तो ऐसी कोई खुशबू जो वहाँ पे होती है. ऑर्गन पाइप जो होता है जिससे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट समझ लें आप. सो दैट इज दैट्स ये जो बैंड वगैरह है, ऑर्गन पाइप है और लोबान है, इसकी जो महक है, इसकी महक की वजह से हो सकता है किसी को पसंद हो तो वहां पर वो आ जाए. और विल बी ही माई रिप्रेजेंटेटिव. और क्या वो कोई और हो सकता है जिसको वो अपना रिप्रेजेंटेटिव समझ रहा है कि मैं मेरे पास शायद वो आएगा, तो दैट विल बी द रिप्रेजेंटेटिव. सो दिस इज द फिफ्थ स्टेंजा. हम डिटेल में यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं. तो वही रिफ्लेक्शन चर्च ग्रेजुअली फेडिंग आइडेंटिटी करेगा अपनी, उसकी आइडेंटिटी फेड होगी तो ऑब्सक्योरिटी की जो आवश्यकता है वो ज्यादा इंक्रीज होगी. सो पर्पस क्या रह जाएगा इसका, ये शेपलेस रिकॉग्निजेबल ईच वे, अपने आप ये लेस रिकॉग्निजेबल हो जाएगा. सो दैट इज दी कौन लास्ट यहाँ पर आएगा. तो दैट्स ऑल ही डिस्कस अबाउट दैट कि ये या तो रूइन बीबर हो सकता है, या क्रिसमस एडिक्ट हो सकता है, या कोई ऐसा एंटीक को जो पसंद करने वाला ऑब्सेस्ड हो सकता है वो आ सकता है, या जिसका नॉस्टेल्जिया हो, सेंसरी ट्रेपिंग्स ऑफ रिलीजन, गाउन्स, ऑर्गन पाइप्स एंड मर, वहाँ की जो खुशबू होती है सारी चीज़ों को लेकर वो आ सकता है. तो समवन द पोएट हिमसेल्फ लाइक इज थिंकिंग अबाउट दैट कि उसकी तरह कोई रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, लूजली कनेक्टेड, अनसर्टन, yet still drawn to the place without fully understanding why. है ना. So without understanding of that one can drawn to that place. So stanza reflect करता है gradual erosion of religious knowledge and personal spiritual meaning in modern society. जैसे वेस्टलैंड में टी.एस. इलियट ने लिखा हुआ है कि पूरी तरीके से वह स्पिरिचुअलिटी खत्म हो गई. टेरेसियस जब आता है तो वो भी यही देखता है. अब जब उसका शुरू होता है पहला इंट्रोडक्शन में पता चलता है कि वो जब किसी सोसाइटी सिटी में आता है, वहाँ के किसी उसमें देखता है वो जाके वहाँ पे गैदरिंग में,
तो उसको लगता है कुछ ही लोग हैं जिसके अंदर बहुत थोड़ा स्पिरिचुअल जो होता है वो बचा हुआ है, बाकी ऑल आर completely, you know, out of that spirituality in their inner psyche. So ये मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जो मीनिंग है ये रेजिंग कर रही है एक बहुत ही विकट क्वेश्चंस को, वेदर एन ऑथेंटिक सीकर विल रिमेन, क्या कोई रह पाएगा नहीं रह पाएगा। जैसे विदेश में मैंने कहा था बहुत लोग बढ़ते चले जा रहे हैं जो एथीस्ट होते चले जा रहे हैं, नास्तिक, जिनको किसी लिए से कोई मतलब नहीं है, सो दे आर नॉट have any hope in them for the religious faith. So the shapeless, recognizable, each being a purpose more obscure. That is the meaning. It's a fading significance of the church. उसके प्रति लोगों की जो उदासीनता है ये फिफ्थ स्टेंजा में रिफ्लेक्ट हो रही है। Now stanza 6, we are seeing the sixth stanza. So what the poet ahead have the view about the church. Bored, uninformed, knowingly the ghostly silt, dispersed yet tending to this cross of ground, through suburb scrub because it held up split so long and equably what sense is found only in separation, marriage and birth and death, and thoughts of these for which was built the spatial shell, for though I have no idea what this accrued frosty barn is worth, it pleases me to stand in silence here. So, what is the explanation of this? We can see the poet imagines the last visitor as bored and uninformed. जो भी लास्ट में आएगा वो uninformed होगा और bored होगा, क्योंकि कोई इन्फॉर्म करने वाला होगा नहीं, इसलिए वो bored होगा, yet aware that the spiritual essence of the church has long since dispersed. और ये dispersed हो गया है, जो essence है spiritual इस पूरी तरीके से empty, nihilistic approach आ गई। Despite this, the visitor is still drawn, though suburb scurb, to this cross the ground, the church held unsplit and equably the great milestone of human life, marriage, birth and death। अब यहाँ पे इसको ग्रेट माइलस्टोन भी बताता है ह्यूमन लाइफ की, जिसमें मैरिज, बर्थ और डेथ, ऑल द एसेंस एंड द नॉलेज, क्योंकि दिस प्लेस वेयर द पीपल गेट द एजुकेशन, knowledge, understanding of their life, their जो उनके गोल होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, that all related to something which is not overt but the covert of life, their own vision of life. So these rites of passage, once unified within this sacred space, are now found only in separation across modern life. But in the modern life, it's all separated. ना, so the visitor lacks knowledge of the church's original worth or purpose. तो वह क्या होता था, कैसे होता था, उसका जो ओरिजिनल नॉलेज है वो आज के लोगों में नहीं है, उस चीज की समझ ही नहीं है, वो समझना नहीं चाहते। इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन acute frosty barn, yet find genuine pleasure simply in standing silently within it. So this is what is there in this lines. So try to understand. ये stanza suggest कर रहा है a deep human need for connection and solemnity that transcends formal religious belief. जो हमारी formal religious belief है उसको ट्रांसेंस करने की आवश्यकता है। इवन विदाउट फेथ और अंडरस्टैंडिंग द प्लेस रिटर्न इट्स क्वाइट पावर एज अ मेकर ऑफ लाइफ्स मोस्ट सीरियस मोमेंट्स। सो इसकी एक विशेषता है इस जगह की, ये मेकर है लाइफ के जो मोस्ट सीरियस मोमेंट्स होते हैं किसी के भी जीवन में, उसको ये कहीं ना कहीं एक विशेष दिशा, मार्गदर्शन, रास्ता दिखाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। What this is what the sixth stanza, it pleases me to stand in silence here। और यहाँ पे जो मौन है, चुप्पी है, वो भी आपको कहीं ना कहीं कुछ एक ह्यूमन नीड है फॉर सोलेमनिटी बियॉन्ड बिलीफ, और बिलीफ से भी पीछे की कहानी है,
जिसमें आपके अंदर एक शांति है, एक अनुभव है, जिसको आप कहीं और नहीं कर सकते, इसी जगह पे फील कर सकते। नाउ स्टैंजा सेवंथ, अगर ये यहाँ पे फील कर सकते हैं, सो कंटिन्यू करते हुए पोएट कह रहा, अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज, जो ग्राउंड है, जो प्लेस है, दैट इज सीरियस ऑन दिस अर्थ, in whose blent air all our compulsions meet, are recognized and robed as destinies. यहाँ पे recognized होता है, पहले वो कह रहा है कि unrecognized, बट यहाँ पे वो कह रहा है कि robed है, destinies हमारी इससे बंधी हुई है, जुड़ी हुई है, connected है, and that much never can be obsolete, और ये कभी भी अप्रचलित नहीं हो सकता, since someone will forever be surprising, a hunger in himself to be more serious, और कभी कोई सरप्राइज होगा, since someone will forever be surprising, कोई ना कोई तो यहाँ पे सरप्राइज हो गई, जिसके अंदर वो भूख होगी, हंगर होगा, किस चीज का, सीरियसनेस का, और वो ग्रेविटेटिंग होगा, एंड ग्रेविटेटिंग विद इट टू दिस ग्राउंड, और वो यहाँ पे खींचा चला आएगा। ग्रेविटी क्या होती है, उसका जो गुरुत्वाकर्षण होता है, सो दैट विल बी, जिसके अंदर सीरियसनेस होगी वो यहाँ पे खिंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो है, फील है, विच ही वंस हर्ड was proper to grow wise in, if only that so many that lie around, और यहाँ पे वो उसको कंटिन्यू करता है और वो कहता है कि विच ही वंस हर्ड, जिसने सुना होगा कि द इस बारे में, was proper to grow wise in, और यहाँ पे जो ज्ञानी बनाने के लिए, किसी को नॉलेज के लिए सबसे प्रॉपर जगह हुआ करती थी, was proper to grow wise in, इफ ओनली दैट सो मैनी डेड लाई अराउंड, और जो बैकयार्ड होता ना चर्च का, उसमें बहुत लोगों को दफनाया जाता, तो क्या वो उनको देखने आएगा या वो इन चीजों को समझने आएगा जो बाकी यूर्स की विशेषता है और महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो इसका थोड़ा सा देख लेंगे इसमें क्या है एक्सप्लेनेशन के अंदर। सो ये अफर्म करते हैं कि सीरियस प्लेस और सीरियस अर्थ होगी, वेयर ऑल ह्यूमन कंपेल्सन्स, डिजायर्स एंड डेस्टिनीज कन्वर्ज एंड आर सोलेमली रिकॉग्नाइज्ड, तो वो कह रहा सब कुछ है यहाँ पे, वो रिलेटेड है पूरी तरीके से। दिस प्रोफाउंड रोल ट्रांसेंड्स चेंजिंग टाइम्स एंड कैनॉट बिकम obsolete, और ये कभी भी अपरिचित नहीं होगा। द चर्च endures not through doctrine but through its function as a place where life's deepest questions are confronted, और ये वही जगह है जहाँ पे जो लाइफ के बहुत डीप क्वेश्चंस हमारे होते हैं उससे सामना होता है। देयर विल ऑलवेज बी इंडिविजुअल who feel a sudden hunger for seriousness and wisdom, gravitating instinctively toward this ground, drawn by memory, tradition and existential need, तो उसकी नीड है वो एग्जिस्टेंशियल, वो ट्रेडिशन से आ रहा है, वो मेमोरी में है। द प्रेजेंस ऑफ काउंटलेस डेथ बरीड इन द चर्च यार्ड डीपेंस इट्स सोलम सिग्निफिकेंस, इसका जो सोलम गंभीरता है इसकी, वो उसको सिग्निफिकेंस को पूरी तरीके से चर्च यार्ड में उसको देख के पता चलता है कि what the life is, है ना, what is meaning, from where we are coming and after the end what happens to it. So connecting the living to mortality and meaning, और वो उसको mortality के साथ जोड़ता है। The poem ends on a note of quiet affirmation, and despite secularism and doubt, churches retain an enduring spiritual and existential importance for humanity. So it cannot be obsolete. ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ह्यूमन का हिस्सा ना रहे, बल्कि ह्यूमन का हिस्सा ये हमेशा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ही जो चीजें हमें जीवन में नहीं समझ में आती है उसके रास्ते यहीं पर आके खुलते हैं या पता चलता है। Let's see the conclusion of the poem, the poet's message. So the poet is saying the church remains a serious house on serious earth, a secret space connecting the physical and spiritual realms, enduring beyond the decline of organized religion. Means it will always be there. It cannot be obsolete or a place that ruined, that will completely undone. So its meaning and significance will always be there. So despite societal changes, the church holds lasting importance for understanding human destiny, because the culture and the tradition of human destiny, its evolution, all is connected to this particular place. The poem reveals a complex relationship with religion. A complex relationship यहाँ पे, that is making between the questions and its revering. Revering means एक विशेष प्रकार का लगाव किसी के प्रति सम्मान,
you can say, inviting readers to reflect on the evolving role of faith and tradition in modern life. और यहाँ पे ऑथर जो पोएट जो है वो रीडर्स को इनवाइट करता है कि वो रिफ्लेक्ट करे जो इवॉल्विंग रोल है आज की डेट में, हमारा बदलता स्वरूप है फेथ और ट्रेडिशन in the modern life or the society. So today we are just concluding this. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक वीडियो के अंदर इतनी सारी चीजें नहीं हो सकती, तो इसका हम जो क्रिटिकल वर्क है, क्रिटिकल रिव्यू है, उसके लिए एक अलग से वीडियो करेंगे कि चर्च गोइंग में या किसी भी पोएम के अंदर किसी ऑथर का क्या बैक टोटल उसकी जो टोटलिटी है इन राइटिंग दैट पर्टिकुलर कंटेंट, वो क्यों इस तरीके से इन चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है, उस पर क्या रिव्यू वर्क है, क्या उसमें क्रिटिकल चीज़ें हैं। सो इसके लिए अलग से हम बनाएंगे। और अभी इतना ही। थैंक यू फॉर योर अटेंशंस, और फॉर एनी क्वेरीज leave a comment and I will definitely answer it. Thank you.